Chapter 2 of Business Studies, Forms of Business Organization. In this, we will study different types of business organization in detail, their merits, demerits, characteristics, all this, and we will compare all those into with each other. Okay. Now, what do you understand by business organization? Business organization, student, is a way how the business is structured, what is its capital, who is bringing the capital, who is managing the business, how many owners are there. All this constitutes the structure of business organization. Now there are 5 types of business organization. What are those? Sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, cooperative society, and joint stock company. Now we will study these into detail. Sole proprietorship. What do you mean by sole? Sole means single, sole, whole of the business. The single person manages the entire business. You can see here also in this picture, there is a single person managing his general store. Similarly, in this cloth store also, there is a single person managing. He is the owner of the business. There is no other person who is working together with him. Employees, I am talking about ownership. There is a ownership in the one hand. There is one manager. So sole proprietorship. Proprietor means owner and sole means single person owns the business and manages the business. Now when single person is owning and managing the business, therefore there may be some drawbacks as well as advantages of the sole proprietorship. So what are those? Let's see. Sole proprietorship. I told you earlier also, sole means single, proprietor means owner. So there is a single owner, yani means one owner of the business who owns the business as well as manages the business. Now what will be the features of this? It is owned by one person and he only manages everything. Very few legal requirements are there in setting up the sole proprietorship business. No legal formalities are implied by the government regarding sole proprietorship. कोई भी दुकान खोल के बैठ सकता है 2-3 चीज़ों important items को छोड़ के. Owner gets all profits. He don't have to share profit with somebody else. Why? Because he is the single owner and he is the only person who manages the business. Therefore, all profits as well as if there is losses, it is borne by the owner itself. It's easiest way. You don't have to talk to anybody, convince anybody and gather the capital and other things, but you have to decide and you have to arrange all the factors of productions and required thing to set up a business. The easiest method, no legal formalities are there as well as it's less expensive too. आप अपने घर का एक रूम में भी शॉप स्टार्ट कर सकते हैं अगर वो साइड रोड पे खुलती है तो लीस्ट एक्सपेंसिव ऑल्सो. घर से बैठे बैठे भी आप शॉप का काम कर सकते हैं, डीलरशिप्स कर सकते हैं, एजेंसी ले सकते हैं. तो दिस इज़ नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप व्हेन सिंगल पर्सन इज द ओनर एज वेल एज मैनेजिंग द बिजनेस. It is also easy to record income tax for this purpose. There are no complications in recording tax. तुम्हें कितना देना है, हमको कितना देना है, and so on. Next is, it is, अब इसके what are the features, characteristics, features, how you will recognize that particular thing is sole proprietorship. What are the features? First thing I told you, single person is the owner as well as manager of the business. He only owns, he only manages the business. Now it is oldest form of business organization. It is most common, oldest तो नहीं बोलेंगे, but it is most common form of business organization. It is owned by single person. He only manages to him. He is the manager only. ये तो आपके देखो दो फीचर ऐसे बन गए, ओनर वही है, मैनेजर वही है, और इट इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. 3 फीचर ऐसे हो गए, कॉमन फॉर्म है, ओनर है एंड मैनेजर ऑफ द बिजनेस है. यानी सारी एक्टिविटीज़ बिजनेस से रिलेटेड ही हैज़ टू मैनेज ओनली. कोई और उसकी हेल्प नहीं करेगा, उसे खुद करना है. अच्छा, सोर्स ऑफ कैपिटल, ही ओनली विल ब्रिंग. अब ओनर भी वही है तो कैपिटल भी ही विल ओनली इन्वेस्ट. व्हाट इज कैपिटल? स्टूडेंट्स, यू इन क्लास 11th, कॉमर्स इज न्यू टू यू, तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट डू मीन बाय कैपिटल. बहुत सुनते होगे कैपिटल कैपिटल कैपिटल. आपके फादर जो सैलरीज लेके घर पे आते हैं, दैट इज़ नॉट कैपिटल, दैट इज़ योर हिज इनकम. ओके,
capital is the money invested in cash or kind in business. It can be in starting of the business or it can be in running of the business. बीच में भी डाल सकते हैं और स्टार्टिंग जब बिजनेस की करते हैं तब भी डालते हैं, तो दोनों ही कैपिटल होते हैं. स्टार्टिंग वाले को कैपिटल बोलते हैं और बीच में अगर आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है तो उसको एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, बट होते दोनों कैपिटल ही हैं. ओके, तो स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस में जो भी कैश इन काइंड ओनर लगाएगा दैट इज नोन एज कैपिटल. नाउ सी, प्रोप्राइटर एंड बिजनेस आर वन एंड द सेम थिंग इन द आईज ऑफ लॉ. लॉ में अगर कोई कोर्ट केस आएगा, कोई कस्टमर या कोई सेलर, आपका डीलर आपसे एग्री नहीं करेगा या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगे एंड ही गोज़ टू कोर्ट टू सू यू, आपके खिलाफ केस करने के लिए, तो बिजनेस इज़ नॉट सेपरेटली ट्रीटेड. प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों एक माने जाते हैं, सिंगल एंटिटी माने जाते हैं, सिंगल पर्सन माने जाते हैं, दोनों ही होते हैं. तो बिजनेस के नाम पे अगर केस है तो वो ओनर के अगेंस्ट केस होता है. ओके, दैट इज द थिंग. अनदर फीचर, लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड. अब पहली चीज़ तो लाइबिलिटी क्या है और ये अनलिमिटेड क्यों है. ठीक है, नाउ सी, लाइबिलिटी मीन्स पेइंग कैपेसिटी. जब भी बिजनेस क्लोज होगा या बिजनेस की कुछ डेट्स होंगी तो उनको पे करने के जो ऑब्लिगेशन होती है वो किस पे आती है, ओनर पे आती है, एंटरप्रेन्योर पे आती है. ओनर और एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु क्रिएट्स द आइडिया ऑफ बिजनेस एंड स्टार्ट्स द बिजनेस. तो जनरली ये दोनों एक ही होते हैं, ओनर और एंटरप्रेन्योर इज द वन एंड द सेम पर्सन. ओके, तो यहाँ पे हमने बोला लाइबिलिटी इज व्हाट, लाइबिलिटी इज द पेइंग ऑब्लिगेशन ऑफ डेट्स ड्यूरिंग रनिंग ऑफ द बिजनेस और ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ द बिजनेस. जब बिजनेस बंद करते हैं तो जो भी बिजनेस का देनदारी होती है, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको चुकाना, लाइबिलिटीज़ जो डेट्स उनको चुकाना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हुम, ऑफ द ओनर और प्रोप्राइटर और एंटरप्रेन्योर. तो यहाँ पे लाइबिलिटी का मतलब है पेइंग ऑब्लिगेशन. ओके, जो भी डेट्स हैं, डेट्स पेइंग ऑब्लिगेशन. डेट्स मतलब जो भी उधार है या फिर जो भी ड्यूज क्लियर करने हैं बिजनेस को, उनको पे करने की ऑब्लिगेशन इज़ नोन एज लाइबिलिटी. अब ये सोल प्रोप्राइटर की होती है तो दैट इज़ अनलिमिटेड. अब व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड? तो डेट्स पेइंग ऑब्लिगेशन इज अनलिमिटेड इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर. व्हाट डज दिस मीन्स? कि मीन्स व्हेन द लाइबिलिटीज आर ड्यू, व्हेन डेट्स हैव टू बी पेड, तो ओनर विल यूज हिज बिजनेस एसेट्स एज वेल एज पर्सनल एसेट्स बोथ. उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. ये वो नहीं कह सकता कि भाई बिजनेस के डेट्स हैं तो बिजनेस के ही एसेट्स के, बिजनेस के ही सामान को बेच के पूरे किए जाएंगे ना. यहाँ पे अनलिमिटेड का मतलब है कि हिज पर्सनल एसेट्स, पर्सनल आइटम्स, पर्सनल वेल्थ विल ऑल्सो बी यूज्ड टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द बिजनेस. तो व्हेन लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड इट मीन्स व्हाट, कि प्रोप्राइटर्स पर्सनल एसेट्स, हिज पर्सनल वेल्थ विल बी यूज्ड टू पे ऑफ बिजनेस डेट्स. क्यों? नाउ कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज हेयर वी सेड देयर इज नो सेपरेट लॉ फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप. वन थिंग. सेकेंड थिंग, in the eyes of law, proprietor and business are one and the same thing. They are not separate. Okay, तो business के जो debts होंगे they will be treated as proprietor's debts also, and therefore whenever debts have to be paid of business, it will be paid by business wealth as well as his personal प्रॉपर्टी ऑल्सो. घर बेच के, ज़मीन बेच के, उनके सामान को बेच के भी वो डेट्स पे कर सकते हैं. लॉ में, कोर्ट में ये ऑर्डर दिए जा सकते हैं. दिस मीन्स अनलिमिटेड. व्हेन हिज डेट पेइंग ऑब्लिगेशन इज अनलिमिटेड, इट मीन्स व्हाट, हिज पर्सनल एसेट्स एंड वेल्थ विल बी यूज्ड टू पे ऑफ योर sole proprietorship business is free from many legal formalities. There are no set law for sole proprietorship business. Okay.
Next is proprietor makes all decisions pertaining. He is the owner, he is the manager, and he is the decision maker. So whatever decisions are made, that is made by the proprietor himself, क्योंकि he is the single person managing the business. अच्छा, limited scope of operations. Why limited scope of operations? Single person. If he is going outside to talk or having meeting with some dealers or buyers, तो डेफिनेटली उसके जो शॉप पे है उस पर बैठेगा कौन, क्योंकि ही ओनली इज़ मैनेजिंग द एंटायर बिजनेस. उसके पास कोई भी साइड में हेल्पर या ओनर नहीं है. ठीक है, तो लिमिटेड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस हैं. वो ज़्यादा वाइड रेंज पे, मैं बोलो 4 ब्रांच हैं और मैं अकेला ओनर हूँ और चारों ब्रांच वो अकेले संभाल लेगा, क्या ये पॉसिबल है? 4 प्लेसेस पे सेम टाइम होना पॉसिबल नहीं है. वेयर ही विल बी नॉट देयर, वहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ के हाथ में ब्रांच छोड़ेगा. एंड हैपन्स व्हाट कि व्हेन यू आर नॉट ओनर ऑफ द बिजनेस, तो आप उसको अपना समझ के काम नहीं करते. तो देयरफॉर लिमिटेड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस इज देयर इन योर सोल प्रोप्राइटरशिप. What are the advantages of sole proprietorship? It is easily formed. Formation is very easy. No legal formalities are there. Discretion in start and dissolution. Whenever you want to start business, you can start business. Whenever you want to stop the business, कि मुझे नहीं करना, आप उसको आराम से close कर सकते हो, dissolve कर सकते हो. Dissolve से ये word आया dissolution. Next, flexibility. Flexibility means what? Whatever changes I want to make in my business, I don't have to ask anybody because I am the whole soul of the business. I am the owner, I am the decision maker, I am the manager, I am the employee, everything. तो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके डिसीजंस में. अगर आपको लगता है प्लान ए काम नहीं कर रहा, तो आप प्लान बी स्टार्ट कर सकते हो. यू डोंट हैव टू आस्क एनीबडी. ओके, नेक्स्ट, free from legal formalities. We have discussed this. There is no settled law made for your sole proprietorship. There is a Partnership Act 1932 for partnership business. Okay, there is a Company Act 1956 for joint stock companies, but there is no set law established for sole proprietorship business. Independence of proprietor. He is independent. Whatever decision he wants to make, he can make. If he don't want to go to the business, he will not go. Okay, so he is independent in decision making. He don't have to ask anybody for making decisions relating to a business. Quick decisions. Quick decisions means कि अब भाई डिले होता है डिसीजंस कब? जब आपके 4 पार्टनर्स होते और उन चारों पार्टनर्स से क्यों आप बुलाते कि कल मीटिंग है, यू जस्ट कम, वी विल डिस्कस एंड वी हैव टू टेक डिसीजन ऑन दिस मैटर. तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है. देयर इज़ अ सिंगल पर्सन, एंड व्हेन देयर इज़ अ सिंगल पर्सन, तो वो स्पॉन्टेनियस डिसीजंस ले सकता है. ही डोंट हैव टू आस्क एनीबडी. तो डिसीजंस विल बी क्विक ऑब्वियसली. Now we have understood the disadvantages. Now we are coming on to the disadvantages of sole proprietorship. What are the disadvantages of sole proprietorship? One person cannot manage everything. He must be good in marketing, but he may not be good in what? May not be having good experience and decision making, right? कि कैसे हमें काम करना है, अब एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो दैट मीन्स कि वन पर्सन हैज़ लिमिटेड स्किल. वो किसी एक स्किल में होगा, ऑलराउंडर हो, ये सब पॉसिबल नहीं होते हैं. जनरली ऑन एन एवरेज हर कोई एक स्किल में माहिर होता है. या तो कम्युनिकेशन स्किल होगी, तो ही इज़ वेरी गुड इन डीलिंग योर एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ एज वेल एज मैनेजिंग कस्टमर्स, बट ही मे नॉट हैव सफिशिएंट कैपिटल. ओके, ही मे नॉट हैविंग सफिशिएंट एक्सपीरियंस. तो दिस इज़ द थिंग कि वन पर्सन हैज़ लिमिटेड मैनेजरल स्किल. यही 4-5 लोग होते साथ में मैनेज करने वाले, तो एक के पास कैपिटल होता, एक अच्छा मैनेजर होता, एक स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेता. तो ऑल दिस इज़ अ शॉर्टकमिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कि यहाँ पे सिंगल पर्सन है, ही हैज़ टू मैनेज एवरीथिंग 24/7. ही हैज़ टू थिंक अबाउट बिजनेस बिकॉज देयर इज़ नो बडी टू हेल्प हिम. ओके, सिंस he is the only person, so decisions can be hasty. In order to make quick decisions, he may make wrong decisions also, ulta pulta decisions also, that is known as hasty decisions. Secrecy causes. When you are the single owner, when you are sharing your things, decisions relating with the business to the other owners or partners,
So they are also owners. They will not disclose the things because it's important to their business as well as important for their income. So they will not discuss because they are owners. Lekin when you will discuss your important items, important things, decisions with your employees, so there is a possibility that they leak the information to the competitors or in the market, which will result to disaster in your business. Next, owner has unlimited liability. The biggest drawback of sole proprietorship is that they have unlimited liability, means their personal assets are also on stake. Personal wealth can be used to pay off business obligations. So this is a big setback for sole proprietorship. They have limited resources. अगर 4 लोग मिल के बिजनेस करते और हर कोई 1-1 लाख रुपये लेके आता तो we would have got 4 lakh rupees. Okay, but since there is a single person, तो he will bring, बहुत ज़्यादा होगा तो 2 lakhs he will bring. तो 4 lakh और 2 lakh, obviously when capital is more, you can purchase big machines, latest technology, hire good employees. But when you have less capital, you have to compromise on the factors of productions as well as machines and production capacity of a business. For the disadvantages of sole proprietorship, there is loss in the absence. If he gets ill, if the businessman gets ill, so what happens? There is nobody to manage business. Difficulty in attracting and retaining good employees. He is the whole soul of a business, so he has to deal. If he do not have good communication skill or not a good leader, so he will not be able to attract and retain good employees. They will be dissatisfied in the organization where they are not taken into confidence while taking big decisions of the business. High mortality rate. High mortality rate means कि ये business की life बहुत कम होती है, ठीक है. High mortality rate की मतलब the life of the sole proprietorship business is very small. Why? If the person gets ill or he gets bankrupt or he gets insolvent और ही बिकेम इनसेन, मतलब कि वो मेंटल इम्बैलेंस खो देता है या कोई इशू हो जाता है, उनके साथ डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये बिज़नेस बंद करने की नौबत आ जाती है. वाई? बिकॉज देयर इज़ नो अदर ओनर टू मैनेज द बिजनेस. ही वॉज द सिंगल ओनर. इफ़ ही इज़ इल, इफ़ ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन, इफ़ ही इज़ नॉट वेल, तो बिजनेस विल कम एट स्टेक एंड इट विल बी क्लोज डाउन. Unit unfit for medium and large business. Large business and medium business means what? Ki more bigger size of the business, more capital, more employees, more number of products, more bigger sales, more branches of the business. The single person cannot maintain or manage so much big number of employees or sales volume or product line or different branches at the same time. Therefore, sole proprietorship business is good for small businesses and not for medium and large business. Joint Hindu family business. Joint Hindu family business is the oldest and unique form of business, okay, in which the entire family, Hindu family, carries a business. Joint family carries a business which is known as joint Hindu family business. It is the oldest form of business. Question can come, what is the oldest form of business organization? Joint Hindu family business is the oldest form of business organization. What is the most common form of organization? Sole proprietorship is the most common form of organization. Okay. अच्छा, joint Hindu family business, जैसे कि नाम बोल रहा है, it is organized by the family. Now, head of the family is generally what? Karta. He is the head of the family, is manages all the business. He manages all the business and is known as Karta. Other family members are the workers of the business. They don't take decision. Only Karta takes decision. Who is Karta? Karta is the head of the family. घर का सबसे जो बड़ा male member होगा, that is the Karta of the business, right? Other family members are what called? They are co-partners. They will work, but the decision will be of only Karta. And who is Karta? He is the head of the joint Hindu family business. सबसे बड़ा member जो घर का male member होगा, उसको कर्ता बनाया जाता है. He takes all the decisions and other family members
are just co-partners. Now, there are two systems of joint Hindu family business. What is that? Daya Bhaga system and Mitakshara. What I said? Daya Bhaga and Mitakshara. M for Mitakshara, M for Daya Bhaga. What do you mean by that? Mitakshara system prevails all over the India except West Bengal. In this system, M for Mitakshara, M for male. In this system, only male members are allowed to participate in the business and they are the co-partners. तो जब मेल मेंबर्स सिर्फ बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, इट इज़ नोन एज मिताक्षरा सिस्टम. Okay, M for Mitakshara, M for male members, so you will not get confused. Daya Bhaga system of business is undertaken generally in West Bengal, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ये देवी स्थान है, काली माँ के मंदिर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. Therefore they give equal importance to their girl child and daughters. तो दया भागा सिस्टम वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, जहाँ पे फीमेल एंड मेल बोथ आर द बिजनेस पार्टनर्स, मतलब वही सारे को पार्टनर्स होते हैं, एंड बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली बोथ वर्क फॉर द बिजनेस. वहाँ पे पार्शियलिटी नहीं है कि सिर्फ मेल मेंबर्स ही को पार्टनर्स हो सकते हैं. बोथ मेल एंड फीमेल फैमिली मेंबर्स आर इक्वली गिवन वेटेज एंड आर द को पार्टनर्स ऑफ द business. But decision making is in the hand only in Karta, head of the family. And since decision is in the hand of Karta, he has unlimited liability and other co-partners have limited liability. Okay. What are the advantages of Hindu undivided family business? Just see. Every co-partner has assured profits. They share profits, right? All the family members who are working for the business are co-partners and they share profits. They get some return. Business has long existence. कि अगर मान लो head of the family aged है and he expires, the next person, his eldest son, will become head of the family and will become the कर्ता of the business. तो ये कंटिन्यू होता है, ठीक. तो अगर ही ऑल्सो एक्सपायर्ड तो नेक्स्ट सन, अब जो घर का सबसे बड़ा बच्चा मेल मेंबर वो कर्ता बन जाता है, एंड दिस गोज ऑन. एंड देयरफॉर इसकी जो बिजनेस है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसकी लाइफ लॉन्गर है इन कंपैरिजन ऑफ योर सोल प्रोप्राइटरशिप. डिसीजन मेकिंग इज क्विक. सिंगल पर्सन के हाथ में डिसीजन मेकिंग है, और वो सिंगल पर्सन कौन है? कर्ता. और ये कर्ता कौन है? हेड ऑफ द फैमिली. अब ये हेड ऑफ द फैमिली कौन है? द ओल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली इज द हेड ऑफ द फैमिली एज वेल एज कर्ता ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ही टेक्स ऑल द डिसीजंस एंड देयरफॉर क्योंकि सिंगल पर्सन है उसे किसी से पूछना नहीं है, देयरफॉर डिसीजन मेकिंग इज क्विक. नाउ सी, नो कॉर्पोरेट टैक्सेस आर चार्ज ऑन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. कोई टैक्सेस नहीं लगते. पीपल यूज इट मोस्टली फॉर टैक्स बेनिफिट दीज डेज. ये टैक्स बेनिफिट लेने के ही लिए लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में को अंडरटेक करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस? सबसे ज़्यादा पावर डिसीजन मेकिंग किसके पास है? ऑल्दो हो सकता है बाकी मेल मेंबर ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, ज़्यादा पढ़ लिख के आए हों, लेकिन जो हेड ऑफ द फैमिली है वही करता है और उसी के पास डिसीजन मेकिंग पावर है. को पार्टनर्स कोई डिसीजन बिना उसके कंफर्मेशन के नहीं ले सकते. इंस्टेबिलिटी है. अब ये क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ एक के हाथ में है तो ग्रेवियांसेस हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, और वो लोग शेयर्स मांग लेते हैं कि हमको बिजनेस में हमने शेयर दीजिए, हम अलग बिजनेस करेंगे. देयरफॉर द लाइफ ऑफ बिजनेस बिकम्स स्टेक एट स्टेक, ख़त्म होने के कगार पे आ जाती है जब वहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स होने लगते हैं, फैमिलीज टूटने लगती हैं. देन लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी रेज्ड. ओनली फैमिली प्रॉपर्टी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी कैन बी, पुरखों की ज़मीन जायदाद ही यूज़ होती है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, इसीलिए लिमिटेड प्रॉपर्टी है. आप बाहर से कैपिटल नहीं लेते, ये लोग अपनी ही पुरखों की ज़मीन जायदाद के बेसिस पे बिज़नेस करते हैं. स्कोप फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैंने पहले ही बताया कि हो सकता है डिसएग्रीमेंट्स हो,
कर्ता बोले दिस माई डिसीजन इज़ फाइनल, बट वहाँ पे ग्रेवियांस हो, जो बाकी मेंबर्स हों वो सेटिस्फाइड नहीं हों, वो चाह रहे हो बिज़नेस को जो है अपनी एजुकेशन के बेसिस पे और बढ़ाना, लेटेस्ट मशीन्स को लाना, बट करता रिफ्यूज़ कर दे कि नहीं, वी विल वर्क ऑन लेबर ओनली, वाई टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड सो. तो ऑल दिस कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द members of the family. Next is your partnership firm. Partnership firm means it consists two or more individuals. वहाँ पे दो से ज़्यादा लोग बिजनेस को ओन करते हैं और मैनेज करते हैं. कौन सा एक्ट इज अप्लाइड? पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 applies on your partnership firm. What do you mean by partnership now? पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर, कम से कम दो लोग होने चाहिए तभी तो पार्टनर होंगे. टू और मोर पर्सनस हु अग्री टू कैरी. पहली चीज़ नंबर ऑफ पर्सनस, नंबर कितने हैं? टू और मोर पर्सनस. फिर हु अग्री टू कैरी ऑन बिजनेस, जो बिजनेस को कैरी करेंगे, मैनेज करेंगे. फॉर अर्निंग, उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए मैनेज कर रहे हैं. ये नहीं कि कोई इवेंट करना है, फेयरवेल करना है और दो लोगों को हेड बना दिया तो वो पार्टनर्स हो गए. नहीं, क्योंकि फेयरवेल तो आप वन टाइम करोगे, रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. पहली चीज़. दूसरी चीज़, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. यू आर नॉट गोइंग टू अर्न फ्रॉम द फेयरवेल इवेंट मैनेजमेंट, राइट. तो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे? मिनिमम 2 होंगे. और उनका क्या होगा? दे विल कैरी एंड मैनेज द बिजनेस फॉर ऑन कंटिन्यूस बेसिस in order to earn profits or losses. अब they will share profits and losses among them. अब इसकी परफेक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने डेफिनेशन क्या बताई? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन, एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड. ये अग्रीमेंट पे होता है. तो फर्स्ट फीचर क्या मिल गया? दे रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, टू और मोर पार्टनर्स हो सकते हैं. दे हैव अग्रीमेंट. सेकेंड फीचर हो गया, देयर इज़ एन अग्रीमेंट विद वर्बल और रिटन. प्रेफरेबली आपको रिटन एग्रीमेंट के लिए जाना चाहिए ताकि कोई डिस्प्यूट हो तो वी कैन गो इन कोर्ट. बट अगर वर्बल ओरल एग्रीमेंट भी हुआ है तब भी वो पार्टनर्स बन सकते हैं एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर. अब उनका अग्रीमेंट हुआ क्यों है? टू कैरी ऑन द बिजनेस, टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैरीड बाय ऑल, चाहे वो सारे पार्टनर्स वर्क करें या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक काम करे बाकी पार्टनर्स के लिए. तो दिस इज़ योर टच स्टोन ऑफ पार्टनरशिप. कैरीड बाय ऑल, या तो सारे पार्टनर्स काम कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, या कोई एक कर रहा हो, बाकी सबके लिए. बाइंडिंग सबके लिए है. उस डिसीजन से अगर एक ने पार्टनर ने डिसीजन लिया है और उससे कोई लॉस होता है तो अदर पार्टनर्स कैन नॉट डिनाई कि इट इज़ योर डिसीजन एंड यू हैव टू बेयर लॉसेस. पार्टनरशिप फर्म में आप हैं, आपने अग्रीमेंट किया है ओरली या रिटन, तो वेदर देयर आर लॉसेस और प्रॉफिट्स, इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स. दे हैव टू शेयर. दे कैन नॉट डिनाई कि डिसीजन तुमने लिया था, तुम गए थे मीटिंग में अकेले तो तुम झेलोगे ये लॉस को, हम नहीं झेलेंगे. You cannot use this word. They have equal binding. किसी का भी डिसीजन हो among partners, बाकी पार्टनर्स पे equal binding होती है. And this is the only touchstone of your partnership. Characteristic of partnership. We have discussed this. There should be at least two members, and maximum 10 members in your banking business and 20 members in other business. Okay. रिलेशन बिटवीन पार्टनर इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अग्रीमेंट होता है, और अगर वो रिटन अग्रीमेंट है तो इट इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड. द फर्म मीन्स पार्टनर्स, द पार्टनर मीन्स फर्म. यहाँ भी वही चीज़ है कि बिजनेस इज इक्वल टू पार्टनर्स. बोथ आर इक्वल ट्रीटेड इन द आइज ऑफ लॉ. यानी कि पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. व्हाट डज दिस मीन? कि whenever the debts of the business have to be paid, they will be paid by the business wealth as well as personal wealth of the partners. इसे बोलते हैं unlimited liability. The profit is divided, या तो इक्वली प्रॉफिट डिवाइड होता है या फिर जो है दे हैव अग्रीड ऑन जिस शेयर पे कि भाई मैंने कैपिटल दिया है, तेरे पास एक्सपीरियंस है, तो 2:1 रेशियो में हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे. वो म्यूचुअल अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है. अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो दे विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली.
नो पार्टनर कैन सेल इट्स शेयर, उस अपना शेयर और इंटरेस्ट इन द फर्म नहीं बेच सकता विदाउट कंसेंट एंड इन्फॉर्मिंग अदर पार्टनर्स। ये नहीं कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं पार्टनरशिप नहीं करूँगा, मेरे बदले मेरा बेटा करेगा। इसके लिए पहले वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे, अगर बाकी पार्टनर्स अग्री करेंगे तभी ये चीज़ हो सकती है। पहले भी बताया, इट हैज़ टू बी अराइव फ्रॉम वैलिड अग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट हो या रिटन एग्रीमेंट हो, बट अग्रीमेंट ज़रूर होगा। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये भी मैंने बताया। अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि जो बिजनेस के डेट्स होंगे वो उनके बिजनेस की वेल्थ से पे होंगे एज वेल एज पर्सनल वेल्थ से भी पे होंगे। वाई? बिकॉज बिजनेस एंड पार्टनर्स आर ट्रीटेड एज वन पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। In order to constitute partnership, there should be a mutual agency between दो सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होंगे और एक दूसरे के प्रिंसिपल होंगे। मीन्स व्हाट? कि अगर मैं एजेंट हूँ एंड मैं बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे एक मीटिंग अटेंड करने गई, तो वट एवर डिसीजन और वट एवर अग्रीमेंट पे मैंने वहाँ साइन किया, उसके जो भी इफ़ेक्ट्स हों पॉजिटिव नेगेटिव, बाकी सारे पार्टनर्स उसको फॉलो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, दे कैन नॉट डिनाई। यही एजेंसी का काम होता है, एजेंट का काम होता है। सिमिलरली वही एजेंट, प्रिंसिपल ने अगर कोई डिसीजन लिया है, हेड ने कोई डिसीजन लिया है, तो वो उससे बाइंड होगा। तो ऑल पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर, दिस इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी फंक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट? सी, नेक्स्ट इज firm does not have separate legal existence. I told you they don't have separate legal existence, they are single person, separate person नहीं है। partners and business are one and the same person in the eyes of law, and this is the reason that they have unlimited liability. Registration of partnership is not compulsory in India as per Indian Partnership Act 1932। रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, बस अग्रीमेंट होना चाहिए। वो अग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट टू बी ऑन सेफ साइड और कोर्ट एक्सेट्रा के प्रोसीजर्स के लिए हेल्प करता है आपका रिटन अग्रीमेंट, इसीलिए रिटन एग्रीमेंट करना चाहिए। दिस इज योर टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप होनी चाहिए। पार्टनरशिप हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट्स को शेयर करें, एंड इट म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। इट शुड बी कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एडवांटेजेस क्या हैं? फॉर्मेशन ईजी है, फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज़ ईजी, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, बिग फॉर्मेलिटीज़ जिसको आपको लाइसेंसिंग चाहिए, फिर ये चाहिए, वो लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल परमिशन चाहिए इन ऑर्डर टू स्टार्ट पार्टनरशिप। ईजिली फॉर्म कर सकते हैं पार्टनर्स अगर अग्री हैं और अग्रीमेंट ओरल या रिटन किया गया है तो। अब 2 से ज़्यादा 4 लोग, 2 मिनिमम 2 पीपल आर गेटिंग इनटू पार्टनरशिप बिजनेस, तो देयरफॉर अगर एक बंदा अगर कैपिटल ला रहा है तो 1 लाख ला रहा होगा, 2 ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2 lakhs ला रहे हैं, 3 आ रहे हैं तो 3 लाख ला रहे हैं, 4 आ रहे हैं तो 4 लाख लेके आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। ग्रेटर मैनेजमेंट टैलेंट, हो सकता है 2 लोग मिले जिसमें से एक के पास बहुत नेम एंड गुडविल और फेम हो, और दूसरा जो हो उसके पास एक्सपीरियंस हो, और तीसरा जो हो बहुत एनर्जेटिक हो, और चौथा जो हो बहुत गुड इन कम्युनिकेशन स्किल हो। तो ये जब चारों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी तो बिजनेस की स्किल और एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी और डिसीजन मेकिंग बहुत एप्ट होगी, राइट? तो ग्रेटर मैनेजमेंट टैलेंट होगा बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन्स आर मोर, करेक्ट? फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, हो सकता है मैं डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दूं कि भाई यू ब्रिंग कैपिटल, आई विल मैनेज एम्प्लॉयज़, यू सी आउटसाइड फील्ड बिकॉज योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी गुड। तो हम अपना काम बांट सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन ला सकते हैं कि अगर मार्केटिंग की आप डील कर रहे हो, मिस्टर ये डील कर रहे हैं, तो मार्केटिंग से रिलेटेड सारे डिसीजंस ही विल टेक, एंड इफ़ आई एम मैनेजिंग द एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे आई विल टेक। दिस इज़ द थिंग, there is a flexibility in operation if proper division of work has been done. Balanced decision, we are assigning the work according to one's capability, तो डिसीजन मेकिंग बैलेंस होगी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। तो हो सकता है जो एंगल एस्पेक्ट मैं ना देख रही हूँ वो अगला पार्टनर देख रहा हो, तो देयरफॉर
when you are sitting and discussing the pros and cons of particular decisions, तो better results आएंगे because there are more than one person to decide. Okay. Sharing of risk and liability. If the business is of single person, एक बंदा होता और लॉस सपोज 1 लाख रुपए होता तो एंटायर 1 लाख उसको बेयर करने पड़ते हैं. बट इफ़ देयर आर 4 पीपल और 1 लाख का लॉस हुआ तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 हो जाता, 25,000 का लॉस बेयर करना पड़ता. तो शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी बिकम्स ईजी व्हेन देयर आर मोर पीपल. करेक्ट. नाउ पर्सनल केयर एंड सुपरविजन ऑफ बिजनेस. बिजनेस के ओनर हैं हम सब चारों, तो जाहिर सी बात है अगर मेरा अपना ओनरशिप है तो हम उस पर ज़्यादा केयर करेंगे और बेटर सुपरविजन करेंगे. 24/7 अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे और इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे. तो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ योर पार्टनरशिप. नाउ सी डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप. सीक्रेसी, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वर्क एंड रिवॉर्ड, मोर पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ. जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग हैं तो बड़े डिसीजंस लेंगे, बहुत रिटर्न्स अच्छे आएंगे, इजी डिसोल्यूशन होगा, सीक्रेसी मेंटेन होगी. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द डिसएडवांटेजेस. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप? अनलिमिटेड लायबिलिटी. मैंने बोला ना, बिजनेस एंड पार्टनर्स आर ट्रीटेड वन इन द आइज ऑफ लॉज. तो जब दोनों अलग एंटिटी नहीं हैं तो क्या होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है. बिजनेस के डेट्स पर्सनल डेट्स हो जाते हैं, यानी कि बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए पर्सनल एसेट्स एंड वेल्थ भी यूज़ किए जा सकते हैं. अगर बिजनेस के एसेट्स कम पड़ गए हैं, वेल्थ कम पड़ गई है तो दिस इज़ नोन एज अनलिमिटेड. लिमिटेड लायबिलिटी होती तो बिजनेस की लायबिलिटी बिजनेस की वेल्थ से पे ऑफ की जाती, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी है मीन्स कि बिजनेस की लायबिलिटी अगर बिजनेस की वेल्थ उसको पे करने में कम पड़ गई है तो पर्सनल वेल्थ यूज़ की जाएगी टू पे ऑफ बिजनेस लायबिलिटीज़. This is known as unlimited liability. Next is limited resources. हो सकता है only one person is bringing capital, तो resource is limited in comparison of joint stock company, but resource is unlimited in comparison of your joint Hindu family business as well as your sole proprietorship business. Limited managerial skill. हो सकता है चारों ही दोस्त हों और उनको मैनेजर स्किल ना आती हो, ठीक है, तो इट कैन बी लिमिटेड. फियर ऑफ डिस्प्यूट. ओरल अग्रीमेंट हुआ है और अगर मैं कंडीशंस भूल गई क्या चीज़ डिसाइड हुई थी रिगार्डिंग योर बिजनेस ऑपरेशन, तो आपस में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, ग्रीवियंस हो सकता है. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट. विदाउट परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स वन कैनॉट ट्रांसफर हिज ओनरशिप टू हिज सन ऑल्सो. ओके, दे हैव टू टेक कंसर्न विद अदर पार्टनर्स कि हम ये छोड़ना चाहते हैं, अब रिटायर होना चाहते हैं और मेरा बेटा इसे कैरी ऑन करेगा. अनटिल एंड अनलेस पार्टनर्स गेट्स एग्री ऑन दिस, आप किसी और को अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, चाहे वो आपका सगा बेटा ही क्यों ना हो. लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. क्योंकि पब्लिक ने पैसे नहीं लगाए इसीलिए पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो सर्वाइव कर रही है या नहीं कर रही है. रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन. म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन में होता क्या है कि ऑल फिंगर्स ऑफ द हैंड आर नॉट सेम. सिमिलरली all partners are also not same. Maybe there can be a one partner who brought capital, good capital, but he is careless also. C for capital, C for careless. He is careless and if he went on the meeting और कुछ अनाप शनाप डिसीजन करके साइन करके चला आया तो it has binding on other partners also. तो this is a risk of mutual agency relation कि losses have to be bared even though पार्टनर के केयरलेसनेस की वजह से वो लॉस हो गया हो. वी कैन नॉट डिनाई कि नहीं दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू, तो यू